the chairperson of our session, and before I hand it over to her, I want to pay my reverence to her for being a lady who has also written on Indian education. I could see her journal here. Like I really appreciate the way she has worked and put her efforts in legal education in India. So I want to pay my respect, ma'am, to you, Professor Bibha Tripathi, ma'am. And now I'd request her to sum up the session on Indian legal education, the challenges which we have faced, and the papers which were presented on this topic. Thank you, Bhavna, for very nice remarks. Actually, from the paper presenters itself, what I thought to conclude is, in very brief manner, I can conclude, though a person becomes obsessed when he writes a paper and it is published in a national journal. So I have written long back a paper on legal education, and the title of that paper was Vision of Visionaries. Because so many stalwarts have been associated with legal education, be it Gandhi ji, be it Sarvapalli Radhakrishnan, Mahamana ji, or Jawaharlal Nehru. So they have expressed their opinion time and again. And from their perspective, it was established that everything is not fair with legal education now. And there are so many challenges. So from their perspective, challenges can be noticed, and from today's paper presenters also, we can notice certain challenges. So अब प्रॉब्लम क्या है कि लीगल एजुकेशन रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट जो आपकी पूरे सेमिनार की थीम है, उसमें लिख रहा है कि NEP के कॉन्टेक्स्ट में NEP is all about indigenization of education, the language dimension of education. तो जो legal education है उसमें जो challenges है वो सबसे ज़्यादा ये है कि we speak in English, we teach in English, and we try to do practice in English, and that is creating some problem in the field. So people are not getting what they wish to get from the council, from the judge. तो यहाँ पर बहुत सारे challenges हैं जो कि हम witness कर रहे हैं. अब अगर हम मेरे द्वारा यह इनजस्टिस हो जाएगी कि मैं पेपर प्रेजेंटर्स के टाइम को कर्टेल करके और उनसे ज़्यादा टाइम पर अपने को फोकस करूं और बोलूं, तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही ब्रीफ में, कम से कम उनसे कम समय में मैं अपनी बात को रखूं. 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. एक तो ये कि चेयरपर्सन की ये ड्यूटी होती है कि क्या पेपर प्रेजेंटर का रेशियो था. तो 3 हमारे पेपर प्रेजेंटर्स फीमेल थी, 5 पेपर प्रेजेंटर्स व मेल, और अगर हम चेयरपर्सन और मॉडरेटर को कंक्लूड कर लें तो रेशियो इज इक्वल 5:5. तो थोड़ा सा जेंडर डायमेंशन में भी हम इक्वालिटी की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी आना चाहिए क्योंकि हर जगह हम लोग इसको कोट कर रहे हैं. दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आया है लीगल सिस्टम पर, जो कि आज ही द हिंदू में बहुत बड़े में आया कि रीथिंक, रिफॉर्म एंड ये RRR नोशन है ना. तो आपको री इमेजिन करना है, रीथिंक करना है, रिफॉर्म करना है. तो कैसे वो RRR नोशन जो है वो जल्दी आपको याद होगा. उसमें अब मैंने थोड़ा जोड़ दिया अभी आपका सुन के III नोशन. तो III नोशन इज व्हाट? internationalization of legal education, Indianization of legal education, as well as indigenization of legal education. तो ये III नोशन भी चलना चाहिए. और उसके बाद हमने ये एक चीज़ बताई कि आप किसी भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जब आप बात बोलते हैं, देन योर स्पीच, देन योर स्टेटमेंट बिकम्स ऑथेंटिक. तो अब यहाँ पर जो नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, तो नेशनल लॉ स्कूल्स आर डूइंग देयर जॉब, एंड माई elder daughter is doing her course in IIT. So I tried to correlate the national law schools and IIT, है ना. तो ऐसे मैंने किया कि national law schools are like NITs, and now university system education should be reframed as Indian Institute of Legal Education. अब हमको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एजुकेशन पर बात करनी होगी, और वो जो हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसको हम इसमें कन्वर्ट करने की सोच सकते हैं. उनको वहीं रेस्ट्रिक्ट करने दें और हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एजुकेशन हो जाएं. तो हमारा क्या होगा? आई लेगी एक छोटा सा ब्रीफ फॉर्म है. वो क्या है? इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एजुकेशन विद ग्लोबल इम्पैक्ट.
हमको ग्लोबलाइज्ड वे में भी बात करनी है। तो सी राजकुमार जी जो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो सारा चीज़ को ग्लोबलाइज करने पर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो 2 पॉइंट जो था कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज. So this acquisition, conservation and transmission is very important. How do you transmit? How the knowledge is disseminated? तो UGC के chairperson ने ये कहा कि if the last person of the society wishes to get legal education, he must get. तो कैसे उसको हो? तो सर्व शिक्षा अभियान में जब हम बच्चों को सर्व शिक्षा दे रहे हैं, फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वहाँ कोर्स करिकुलम ऐसा हो कि वहीं से राइट और ड्यूटी का ओरिएंटेशन, वहीं से हम उनका कुछ कोर्स करिकुलम में रिफॉर्म करें, तो वहाँ से बात आनी चाहिए। तो ये यूजीसी के चेयरपर्सन की क्या बात है, एनईपी के कॉन्टेक्स्ट में लीगल एजुकेशन कैसे चल सकता है, इन चीज़ों पर हमको गौर करना पड़ेगा। और फिर मैंने एक चीज़ कही थी कि किसी भी छोटे से शिक्षण संस्थान को आप देखिए, प्राथमिक विद्यालय होगा, वहाँ लिखा रहता है ज्ञानार्थ आइए सेवार्थ जाइए। ये जो स्लोगन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ लॉयरिंग में गांधी जी को कहना पड़ा कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट पर्स हु विंस। सो ये लॉन्गेस्ट पर्स की विनिंग नहीं होनी चाहिए। सब लॉ शुड नॉट बी देयर फॉर सबसर्विएंट, है ना। तो उनके लिए इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। अब हमको बात करनी है कि जो आप डिग्रियार्थ आ रहे हैं और शोषणार्थ जा रहे हैं, इसको कम करना है। फिर से उसी पर आना है कि आप ज्ञानार्थ आइए सेवार्थ जाइए। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड। Thank you so much, ma'am, and appreciate your time, everybody's time. In fact, I also wanted to mention something. I have written a book on ancient foundations to modern law. It's by Satyam Publications, and it's also an attempt on how to relate the ancient texts with modern ways of not just litigations, but also how to educate. And so I would appreciate if you can all get a copy of it from Satyam, and it's on Amazon also. It's releasing this month. Okay, thank you.